Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the revision through MCQ discussion series. So we will be revising the complete concepts of the chapter through these multiple choice questions. Topic for this lecture is solid state. So before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs which will help to revise the topic thoroughly. Right, in the previous lecture you have taken up many questions on solid state, particularly how to find out the formula for the crystal. You have learnt the various crystal systems, NaCl crystal structure, cesium chloride, zinc sulfide and fluorite, antifluoride structures. Apart from that, crystal structure of diamond, how many atoms of carbon are there in one unit cell of diamond, how many formula units of NaCl are present in one unit cell of NaCl. Similarly, coordination number for each cation, for each anion, how radius ratio helps to predict the geometry of the crystal. All these things we have learnt in the previous video, and even in this video we'll have more question on crystal structures. For example, edge length is given, size of cation is given, find out size of anion, or vice versa. And for such type of question, the knowledge of crystal structure is must. Apart from that, beta, main focus in this video will be on the types of defects. There are many types of defects in the crystal structure. Some are stoichiometric, some are non-stoichiometric, and they are further divided into some types. Some magnetic properties of solids are there, and what are their uses in practical life. All these things, all these concepts we will be revising in these multiple choice questions. So let's start with question number 31. The question 31 is, a binary solid AB has rock salt structure and edge length is given to us 400 picometer, radius of cation is given which is 75, find out the radius of anion. So first of all, we have to know that rock salt structure means NaCl type structure. Rock salt structure means NaCl एक टाइप है बेटा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर मतलब और भी क्रिस्टल्स का, जैसे कि KCl आ गया या लिथियम क्लोराइड या रुबीडियम क्लोराइड, ऑल अल्कली मेटल क्लोराइड्स आर हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर. तो आपके क्वेश्चन में जो भी सॉलिड AB दिया है उसके ऊपर NaCl टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है, तो आपको एज लेंथ गिवन है 400 पिकोमीटर and radius of cation is also given which is 75 picometer. Radius of an ion is to be calculated. What is the way out? ये तो आप तभी लगाओगे ना फॉर्मूला कोई भी, अगर NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता हो. तो NaCl स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे क्लोराइड है, कहाँ कहाँ पे सोडियम है. क्लोराइड इज प्रेजेंट इन CCP arrangement or you can call it FCC. FCC का मतलब corner plus face center, and Na plus is present on the octahedral voids. Octahedral void कहाँ कहाँ होता है, edge center पे और body center पे. octahedral void ये वाले points के ऊपर present है. तो अब हम structure में edge बनाते हैं एक. ये NaCl crystal structure का मैंने edge बना दिया. तो इस एज के ऊपर बेटा क्लोराइड है कॉर्नर पे, और दोनों कॉर्नर मैंने कवर कर दिए, और सेंटर में सोडियम है. एज लेंथ को कवर करने के लिए कॉर्नर्स पे लिया क्लोराइड और सेंटर में लिया सोडियम, क्योंकि सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था. ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पे आता है. आपको मालूम होना चाहिए 12 एजेस हैं, हमने 12 में से कोई एक एज यहाँ पे शो कर दिया. सो दिस इज क्लोराइड एंड सेंटर में Na प्लस. कैन यू सी, सोडियम के तो दो रेडियस इस एज के ऊपर फिट हो रहे हैं, तो 1 एज लेंथ इज इक्वल टू 2 रेडियाई ऑफ कैटायन प्लस 2 रेडियाई ऑफ एनायन. तो आपके पास वैल्यूज गिवन है. एज लेंथ में 400 पिकोमीटर गिवन था, रेडियस ऑफ कैटायन दिया था 150, रेडियस ऑफ एनायन हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, no it was not 150, I think it was 75. क्वेश्चन में चेक करो, this was given to be 75. be careful while substituting the values. तो ये 75 है, not 150. सो आप यहाँ 75 लगाओ तो ये 150 आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन.
एज अ रिजल्ट फाइनल तुम्हारा रेडियस ऑफ एन आयन आता है इक्वल टू 125 पिकोमीटर आफ्टर सॉल्विंग. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. 125 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन हमारा आंसर. रेडियस ऑफ एन आयन इज 125 पिकोमीटर. सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, काफी बार आता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होगा तो पता चलेगा कि एज लेंथ के ऊपर कौन कौन प्रेजेंट है, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. वी आर गिवन कैलकुलेट द आयोनिक रेडियस ऑफ सीजियम प्लस. सीजियम प्लस का आपको आयोनिक रेडियस कैलकुलेट करना है. एज लेंथ ऑफ सीजियम क्लोराइड इज गिवन 0.4123 नैनोमीटर. कैलकुलेट द आयोनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयोन. नो, क्लोराइड का कैलकुलेट नहीं करना, क्लोराइड का गिवन है, सीजियम का कैलकुलेट करना है. अब ये स्ट्रक्चर बेटा डिफरेंट है NaCl से. सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर याद होगा तो आप रिलेशन अप्लाई करोगे. तो रिवाइज करने के लिए, सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर. सीजियम प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द बॉडी सेंटर. यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में. इसको क्यूबिक साइट भी बोला जाता है. वहां तो मैंने एज लेंथ लिखा था, यहां एज लेंथ नहीं, यहां सिचुएशन डिफरेंट है. यहां ये सिचुएशन है कि यूनिट सेल जब हम ड्रॉ करते हैं तो कॉर्नर कॉर्नर पे क्लोराइड है. यूनिट सेल में हम सारे कॉर्नर्स को क्लोराइड से कवर कर देंगे. डायग्राम इज विजिबल टू यू. ऑल 8 corners are having chloride ions, and in the center there is one cesium. ये 8 एटम सेंटर वाले सीजियम को टच करते हैं. आपको पहले सिखाया था BCC में, ऑल द कॉर्नर एटम्स टच द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. सेंटर में बेटा ये मैंने सीजियम ड्रॉ कर दिया है और कॉर्नर्स पे सब क्लोराइड्स हैं. अब आप इसको देखो, ये जो तुम्हारा डायगनल है, यूनिट सेल का डायगनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी होती है? बॉडी डायगनल के ऊपर सीजियम और क्लोराइड आ रहे हैं तो बॉडी डायगनल बेटा √3 टाइम्स ऑफ ए होता है. हमने डेरिवेशन में इसको प्रूव भी करा था प्रीवियस वीडियो में. √3 टाइम्स ऑफ ए. एज लेंथ से √3 टाइम्स बॉडी डायगनल होता है. कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि एज लेंथ इज गिवन टू यू, फाइंड आउट बॉडी डायगनल. और कभी फेस डायगनल निकालना हो तो वो √2a, बॉडी डायगनल इज √3a. राइट. तो अब बेटा √3a जो कि डायगनल है, उसके ऊपर 2 रेडियस हैं कैटायन के और 2 रेडियस हैं एनायन के. कैटायन आपका सीजियम प्लस है और एनायन क्लोराइड है. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर हम ये एक्सप्रेशन को ठीक से समझ लें तभी क्वेश्चन हो सकता है. √3a क्यों लिखा है? क्योंकि सीजियम तो एज लेंथ पे था ही नहीं, सीजियम तो बॉडी डायगनल पे था, डायगनल के सेंटर में था. तो कॉर्नर के क्लोराइड और सेंटर का सीजियम आपस में सब टच कर रहे हैं. आपको याद होना चाहिए, ऑल द कॉर्नर एटम्स इन BCC दे टच द एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. सो √3 इंटू एज लेंथ. देखो ऊपर एज लेंथ कितना गिवन है क्वेश्चन में? एज लेंथ दिया है 0.4123. तो एज लेंथ की जगह लिखेंगे 0.4123 इक्वल टू रेडियस ऑफ क्लोराइड दिया है और सीजियम कैलकुलेट करना है. ये देखो क्लोराइड का 0.181, सीजियम के लिए आप R+ लिख लो और ये है 2 × 0.181, 0.181 नैनोमीटर. तो √3 का वैल्यू डालेंगे 1.732, 0.4123 वैल्यू वॉज गिवन. इन दिस वे, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो रेडियस ऑफ कैटायन. तो कैटायन का रेडियस ये आ जाएगा 0.176 नैनोमीटर, 0.176 नैनोमीटर. अब ऑप्शंस देखो, 0.176 नैनोमीटर इज गिवन इन ए ऑप्शन.
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन 31 में आपने सेम काम किया जो 32 में किया, फर्क क्रिस्टल स्ट्रक्चर का था, वहां NaCl का स्ट्रक्चर था, यहाँ सीजियम क्लोराइड का है। NaCl में एज लेंथ के ऊपर 2 रेडियस कैटायन के 2 एनायन के आते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 रेडियस कैटायन और 2 रेडियस एनायन आते हैं। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन दिस वे आपका आंसर बना 0.176 नैनोमीटर। लेट्स कम टू द क्वेश्चन 33 नाउ। क्वेश्चन 33 ये है बेटा डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड टू कम ऑन डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। You are given NaCl is doped with 10 raised to power -4 mole% of strontium chloride. NaCl का डोपिंग कर दिया किसके साथ? स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ। The concentration of cation vacancies is, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन NCERT एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो डिफेक्ट पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कैटायन वैकेंसीज निकाल सकते हो। बात यह है कि NaCl के अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का डोपिंग कर दिया जाता है। ये है Na+ क्लोराइड, Na+ क्लोराइड रेगुलर क्रिस्टल ऐसे है, फिर आएगा यहाँ क्लोराइड, यहाँ पे Na+। इन दिस वे वी हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयोन्स। फिर क्या होता है कि यहाँ पे किसी एक जगह पे सोडियम की जगह मैंने स्ट्रॉन्शियम लिख दिया, और फिर ये क्लोराइड, फिर ये यहाँ कुछ मिस हो रहा है, और फिर क्लोराइड है नहीं। इस तरीके से स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का डोपिंग के बाद स्ट्रक्चर ये बनेगा। आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, आपने उसमें डोपिंग किया, डोपिंग मीन्स समथिंग एडिड फ्रॉम आउटसाइड, तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड बाहर से डाला। कैसे डालते हैं? पहले NaCl को मेल्ट करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे, दोनों को एक ही कंटेनर में इकट्ठा कूल डाउन करेंगे। जब कूल करेंगे क्रिस्टल रीग्रो करेगा, जब क्रिस्टल दोबारा से ग्रो करेगा, कुछ जगह पे सोडियम कुछ जगह पे क्लोराइड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर लेटिस पोजीशंस। अब होता क्या है कि क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहता है, चाहे सोडियम की जगह बीच बीच में क्लोराइड आ गया, क्रिस्टल हैज टू बी न्यूट्रल। तो देखो बेटा सोडियम के ऊपर तो 1 यूनिट चार्ज है, तो कैन आई से 2 सोडियम को 1 स्ट्रॉन्शियम रिप्लेस करेगा। 1 स्ट्रॉन्शियम कैरीज +2, सोडियम कैरीज +1, तो 2 सोडियम का रिप्लेसमेंट 1 स्ट्रॉन्शियम से होगा। 2 जगह से सोडियम बाहर चला गया, 2 जगह खाली हुई, उन 2 में से एक जगह पे स्ट्रॉन्शियम आ गया, तो एक तो खाली होल रह गया कि नहीं? 2 सोडियम के जाने से एक स्ट्रॉन्शियम अंदर आया और एक होल आ गया। होल को बेटा कैटायन वैकेंसी कहा जाता है, होल को ही कैटायन वैकेंसी कहते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने यही कहा था ना, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, मतलब होल्स कितने हैं ये बताना था। कैटायन वैकेंसीज का मतलब है होल्स। तो अब हमें इस वाले इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि अगर एक स्ट्रॉन्शियम अंदर आएगा तो एक होल आएगा। कैन यू सी फ्रॉम हेयर, 1 स्ट्रॉन्शियम मीन्स 1 होल। अब क्वेश्चन में कितने स्ट्रॉन्शियम है चेक करो। क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है 10 raised to power -4 mole% of strontium chloride is added. So 10 raised to power -4 mole%, अगर स्ट्रॉन्शियम एडिड है, इसका मीनिंग यही निकलता है ना कि 10 raised to power -4 mole% ऑफ होल्स हैव बीन क्रिएटेड, और आप होल की जगह कैटायन वैकेंसी भी लिख सकते हो। जितना स्ट्रॉन्शियम है उतने होल, 2 स्ट्रॉन्शियम अंदर आए तो 2 होल होंगे, 50 आए तो 50 होल होंगे। हमारे क्वेश्चन ने कहा था 10 raised to power -4, एज ए रिजल्ट ये बन गया 10 raised to power -4 अपॉन 100 मोल्स। क्यों? क्योंकि परसेंट बोला था, ये देखो ये परसेंट बोला था ना, तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट दिस इज 10 raised to power -6 मोल्स। अब मोल को भी खोलना पड़ेगा, मोल की जगह मैंने एवोगैड्रो नंबर लिख देना है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू डालेंगे, इट इज 10 raised to power -6 इंटू 6.023 इंटू 10 raised to power 23।
तो ये कितना बनता है 6.023 इंटू 10⁻17। अब क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई भी तो करना था विद 10⁻⁻4। -4 का मैंने -6 कैसे किया, यहां पे आप नोट कर लो, डिवाइड करना है 100 से। क्यों? क्योंकि परसेंट बोला जा रहा था। एज अ रिजल्ट ये आपके पास 6.023 इंटू 10⁻17 क्या चीज आ गया, इतना हमने स्ट्रॉन्शियम डाला है। स्ट्रॉन्शियम +2 एडेड, जो भी स्ट्रॉन्शियम +2 एडेड है उतना ही तो वैकेंसीज हैं। हेंस कैटायन वैकेंसी will be equal to the same value 6.023 into 10⁻17। अब ऑप्शंस देखो, आपकी ऑप्शन है 6.022, 0.022 भी ले लेते हैं ना एवोगैड्रो नंबर को, तो आंसर बनता है बी ऑप्शन, बिकॉज वी आर गेटिंग 10⁻17 मोल %। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी में अगर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की जगह लेट्स से क्वेश्चन ने कह दिया, प्लीज नोट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने अभी अभी देखा 2 सोडियम को रिप्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्शियम आता है, उससे एक होल क्रिएट होता है। होल की जगह हम कैटायन वैकेंसी लिख सकते हैं, या बेटर है स्पेस कम है तो मैं होल लिख रही हूं, ठीक है। सो होल्स आर क्रिएटेड, बट एक स्ट्रॉन्शियम से एक होल आया। अब स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की जगह समझ लो AlCl3 ऐड किया जाए, एल्यूमिनियम +3 से तो 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम कैरी अ चार्ज इक्वलेंट टू 1 एल्यूमिनियम, एंड 3 सोडियम बाहर गए, एक जगह पे आके एल्यूमिनियम +3 फिट हो गया, 2 होल रह गए, सो 2 कैटायन वैकेंसीज। अगर किसी टेट्रावेलेंट मेटल ले लिया, लेट से टिन टेट्रा क्लोराइड से डोपिंग कर दिया, तो 4 सोडियम को रिप्लेस करेगा एक टिन, क्योंकि टिन पे चार्ज है +4 और सोडियम पे चार्ज है +1, तो 4 सोडियम हैव टू गो आउट टू एडजस्ट 1 टिन +4, बट एक जगह ही टिन बैठेगा ना, बाकी 3 जगह पे होल आएगा, कैटायन वैकेंसी आएगी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में डोपिंग किसके साथ हो रहा है वो मैटर करता है। मेटल आपको मोनोवेलेंट देते हैं या डाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट, अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो हमारा आंसर इसमें बी ऑप्शन, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 34। द क्वेश्चन इज, on heating zinc oxide it acquires yellow color, this defect is popularly known as। जब हम हीट करते हैं किसको, जिंक ऑक्साइड को, तो येलो कलर आ जाता है, वैसे वो व्हाइट कलर का होता है, फिर येलो क्यों हो गया। सो जब येलो कलर आता है तो इट इज ड्यू टू मेटल एक्सेस, एफ सेंटर, इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो बेटा टेबल दिया है हेल्प के लिए, टेबल में आपको अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स दिखाए गए हैं, हमें ये बताना है डिफेक्ट को बोला क्या जाता है। डिफेक्ट इज नोन एज जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर, कीप इन माइंड। अंडर कोल्ड कंडीशन वो व्हाइट होता है, अगर हीट कर दिया जाए वो येलो हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है। ZnO इज जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट अंडर कोल्ड कंडीशंस। कोल्ड कंडीशंस में ये व्हाइट कलर का होता है, पर जैसे ही हीट करो ये येलो क्यों हो जाता है, तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, वो उसका रीजन बताना है। देखो हम कई तरह के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, टेबल में देखिए पहले स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक का मतलब है कि व्हेन द रेशो ऑफ कैटायन टू एनायन इज सेम एज दैट ऑफ द फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला AB है तो AB मतलब 100 कैटायंस 100 एनायंस। फॉर्मूला अगर AB2 है क्रिस्टल का तो 100 ऑफ A एंड 200 ऑफ B, राइट। सिंपल होल नंबर रेशो में आपके पास कैटायन एनायन होते हैं, बट नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का एग्जाम्पल है जैसे Fe0.930। Fe0.930 आपने जरूर देखा होगा, इसका मतलब है कि अगर 100 ऑक्सीजन के एटम है तो 93 Fe हैं, मतलब 1:1 नहीं आ रहा, 100 के पीछे 100 नहीं है, कुछ ना कुछ Fe मिसिंग है।
तो जब ये रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट इन ए होल नंबर रेशो, इसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आएगा वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक आएगा। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मतलब इम्बैलेंस है, या तो कैटायन मिस हो जाता है, या एनायन मिस हो गया, या एनायन एक्स्ट्रा हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स में नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आता है। तो डिफेक्ट में शॉटकी एंड फ्रेंकल, इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे जब इसका क्वेश्चन आएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में फर्दर या तो मेटल एक्सेस हो जाती है या मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। कभी कभी इंप्योरिटी बाहर से डालने पे भी नॉन स्टोकियोमेट्रिक सिस्टम क्रिएट कर लिया जाता है। गॉट इट। तो अब हमारे पास है बाय एनायन वैकेंसी और बाय हैविंग एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सेस क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो एनायन वैकेंसी या हैविंग एक्स्ट्रा कैटायन। तो बेटा अब हमारा ये क्वेश्चन मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्वेश्चन है। हमारा आंसर ए बनेगा। कैसे मेटल एक्सेस हुई वो देखो, रिएक्शन में आपको लिख के दिखा रही हूं। ये हम Fe वाला सिस्टम हटा देते हैं। हमारा क्वेश्चन जिंक के ऊपर है। जिंक का डिस्कशन ये है, कीप इन माइंड जिंक ऑक्साइड ये व्हाइट कलर का है कोल्ड कंडीशंस में। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पे देखो क्या होगा, ये रिएक्शन बन जाता है जिंक +2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन सबको ठीक से लिखना आना चाहिए, अदरवाइज कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछा जाता है। आपने कहना है कि जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, इट लूजेस ऑक्सीजन, इट लूजेस ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। हीट करने पे ये ऑक्सीजन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जिंक +2 निकलेगा। तो देखो अब ये जो जिंक +2 आ गया ना, ये एक्स्ट्रा कैटायन किसी वॉइड में चला जाएगा। हमने आंसर क्या देने वाले हैं हम, मेटल एक्सेस या एफ सेंटर या इलेक्ट्रॉन एक्सेस। आंसर है मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस किस तरीके से, क्योंकि हमने हीट कर दिया। मेटल एक्सेस क्यों हो गई, क्योंकि आपने हीट किया जिंक ऑक्साइड को, हीट करते ही इसमें से जिंक +2 निकला। अब रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये था A+B- एंड रेगुलर में A+B-, मैंने 3-4 बारी लिख दिया है। उसके बाद हम इन पे चार्जेस लगाएंगे, A के ऊपर पॉजिटिव, B-। इन दिस वे ये रेगुलर क्रिस्टल था। अभी तो क्रिस्टल आइडियल ही बना रखा है। लेट्स से कि मैंने जिंक ऑक्साइड का बना दिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम जब उसको हीट कर देते हैं तो जिंक +2 रिलीज होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। वो एक्स्ट्रा कैटायन किसी होल में एंटर कर जाता है। अब उस कैटायन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू सम अदर होल। एक होल में कैटायन, एक होल में इलेक्ट्रॉन। अब हमारा एग्जांपल तो जिंक था, एक भी जिंक +2 अगर एंटर होगा तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। एक वॉइड में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरे वॉइड में दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। इन दिस मैनर मेटल एक्सेस क्रिएट हो जाता है। मेटल एक्सेस के साथ साथ क्रिस्टल है न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिलीज हुए जब रिएक्शन हुआ, जब ऑक्सीजन का लॉस हुआ, जिंक +2 बना, साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये रिएक्शन है। रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कभी जिंक +2 लिख रहे हैं, कभी जिंक मेटल लिख रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। राइट साइड पे जिंक मेटल नहीं है, जिंक +2 है। ये कैटायन किसी वॉइड में एंटर हो जाता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू सम अदर वॉइड। एज ए रिजल्ट मेटल एक्सेस क्रिएट हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल के अंदर कलर आया, येलो कलर। और हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन। एफ सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होता है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। एफ सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी एफ सेंटर पे आता है। सो एक बारी फिर से सुन लो। हमारा क्वेश्चन था कि जिंक ऑक्साइड येलो कलर क्यों अटेन कर रहा है। आंसर है क्योंकि हीट करने से उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अदर डिफेक्ट्स का डिस्कशन हमारे नेक्स्ट कमिंग क्वेश्चंस के ऊपर आएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑन डोपिंग जर्मेनियम मेटल विद अ लिटल ऑफ गैलियम वन गेट्स। क्या क्या गिवन है आपको, जर्मेनियम मेटल
जर्मेनियम मेटल के ऊपर आपने डोपिंग कर दिया है गैलियम का, तो क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा या एन टाइप और सम इंसुलेटर और रिएक्टिफायर? देखिए जर्मेनियम, पहले तो ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कहां पे है। सिलिकॉन का मेंबर है, सिलिकॉन ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये बेटा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 14। सिलिकॉन जर्मेनियम से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और एल्यूमिनियम के नीचे है गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 13। तो जब गैलियम के साथ हम डोपिंग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है कि जर्मेनियम में तुम गैलियम डाल रहे हो, डोपिंग करना मतलब बाहर से कुछ लाके मिक्स करना, क्या मिक्स कर दिया? गैलियम। तो क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप? हमने कैसे देखना है? ये याद रखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में फॉर ग्रुप 13 और जर्मेनियम तो ग्रुप 14 का था, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल। एज अ रिजल्ट देखो क्रिस्टल में ये सिचुएशन है, आपके पास पूरा जर्मेनियम था सब जगह, जर्मेनियम का आपको क्रिस्टल गिवन था। जर्मेनियम 4 बॉन्ड बनाता है, हम सब तरफ 4-4 बॉन्ड्स क्रिएट कर देंगे। दीज आर दी 4 बॉन्ड्स, दीज आर 4 बॉन्ड्स। और डोपिंग के टाइम पे समझ लो गैलियम आ गया एक जगह पे, डोपिंग हमने गैलियम से किया। आपको बताया डोपिंग करने के लिए दोनों चीजों को हीट करना होता है अप टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, फिर कूल डाउन करते हैं। तो ये सिचुएशन है बेटा। अब इसके पास तो वैलेंस शेल में बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे। एज अ रिजल्ट एक जगह पे होल क्रिएट होगा। जर्मेनियम 4-4 बॉन्ड बनाएगा, पर गैलियम तो 4 नहीं बना सकता ना, गैलियम तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। गैलियम के देखो मैंने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जर्मेनियम के 4 बनेंगे। एज अ रिजल्ट सिचुएशन क्या है? होल आ गया। होल का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स आर क्रिएटेड, होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन्स। होल आने से देयरफॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो पी टाइप बनता है। याद रखने की बात यह है, ग्रुप 13 एलिमेंट इफ डोप्ड इनटू ग्रुप 14, ग्रुप 13 अगर डोपिंग करोगे देन पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी ऑब्टेन्ड। फिर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। अगर आप 14 के अंदर 15th की डोपिंग करो फिर एन टाइप मिलता है, ठीक है। 15th ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वाला। और ग्रुप 13 है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाला। ग्रुप 15 होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, ग्रुप 13 होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, हमें मालूम है। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो काफी क्वेश्चंस आते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 36। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो। आपके पास कुछ NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया है, तो क्या ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो कर रहा है या शॉर्टकी को या फ्रैंकल को या दोनों को? ठीक है, तो डायग्राम ठीक से देखिए। Na+ एंड Cl नेगेटिव का अरेंजमेंट है और जहां जहां पे होल है उसको देखते हैं बेटा। एक तो ये होल और एक ये होल, ठीक है। ये जो जहां अब मैंने टिक किया, ये यहां से Na+ मिसिंग है और इधर दूसरे वाले पे क्लोराइड मिसिंग है। तो इक्वल नंबर में, इक्वल नंबर ऑफ आयोन्स, कैटायोन्स एंड एनायोन्स आर मिसिंग इन इक्वल नंबर। Equal number of ions are missing from their lattice site. Lattice site मतलब जिस जिस पॉइंट पे भी वो प्रेजेंट थे वहां वहां से ये मिस हो गए। जब इक्वल नंबर में मिस होते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, ये याद रखना है। यही शॉर्टकी डिफेक्ट का डेफिनेशन है। ये फिर स्टोकियोमेट्रिक होगा, ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक नहीं है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में तो कुछ एक्सेस में आ रहा है या कुछ डेफिशिएंसी में रह रहा है। यहाँ ना एक्सेस है ना डेफिशिएंसी है। रेगुलर क्रिस्टल में कुछ मिसिंग नहीं होता, बट जब डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट में
कैटायन भी मिस हुआ, एनायन भी मिस हुआ, बट इक्वल नंबर में मिस हुए। मिस होने से होल्स क्रिएट होते हैं, होल क्रिएट होने से क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्रिस्टल में कलर भी आएगा। सो डिफेक्ट्स आर यूजफुल फॉर अस, कीप इन माइंड। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये डिफेक्ट की वजह से आती हैं। तो शॉर्ट की डिफेक्ट था इसका रीजन। गॉट इट? शॉर्ट की डिफेक्ट बिलोंग्स टू स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। Coming to the next, another question on Schottky defect. Schottky defect arises due to missing of cation from the lattice, crystal lattice, or missing of anion from the crystal lattice, or missing of cation and anion both. Keep in mind, जब दोनों मिस होते हैं, जब कैटायन एंड एनायन इक्वल नंबर में मिस होते हैं, तब शॉर्टकी डिफेक्ट आता है। तो इस क्वेश्चन के साथ आप लर्न करिए शॉर्टकी और फ्रेंकल का क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं। शॉर्टकी और फ्रेंकल में क्या क्या डिफरेंस आता है। पहला पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन शॉर्टकी, बट फ्रेंकल में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो कैटायन होगा वो अपनी लैटिस पोजीशन छोड़ के किसी वॉइड में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ो क्या लिखा है। सम आयन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड, वॉइड को ही इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो जो बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट है ना, एक तरह से वो डिसलोकेशन डिफेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरे वॉइड के अंदर ये एंटर हो गया। जनरली कैटायन जाता है क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, वॉइड में कैटायन ही फिट हो सकता है। एज अ रिजल्ट जब फ्रेंकल डिफेक्ट आएगा तो डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डेंसिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि सिर्फ डिसलोकेट हुआ ना, मिस तो नहीं हुआ। शॉर्टकी में डेंसिटी कम हो जाएगी, शॉर्टकी में डेंसिटी इज लोअर्ड। फिर फ्रेंकल डिफेक्ट का मेन प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल इंक्रीज इन फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्यों फ्रेंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया? ये देखो अरेंजमेंट ऐसा होता है, A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव, इस तरीके से हमारा रेगुलर क्रिस्टल चल रहा है। ये रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है। सो यू हैव A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव। ठीक है, तो किसी एक जगह से अब कैटायन को मिस करा देंगे। ये रेगुलर साइड से मैंने कैटायन मिस करा दिया और उसकी जगह उसको वॉइड में डाल दिया, वॉइड में डाल दिया, तो ये आ गया फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट आने से आपको ये दिख रहा है कि ये जो A प्लस हैं ये पास पास आ गए, A प्लस बी नेगेटिव के भी पास आ गया। सो आयन्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों बढ़ जाता है? आयन्स कम क्लोज टू ईच अदर, ions will come close to each other in Frankel defect। जब वो पास पास आ जाते हैं ना बेटा, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, hence डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो जो भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो अगर हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि शॉर्टकी में डेंसिटी पे क्या असर आएगा, कभी पूछेंगे फ्रेंकल में डेंसिटी पे क्या असर आएगा। तो याद रखिए फ्रेंकल में डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट इसमें तो सेम रहती है। शॉर्टकी के अंदर तो कुछ भी पास नहीं आ रहे हैं आयन्स, रादर मिस हो रहे हैं, सो डेंसिटी इज नॉट अफेक्टेड। आफ्टर दैट इन शॉर्टकी डिफेक्ट याद रखने का अगला पॉइंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के केस में। और देखो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों चाहिए? अगर पहले से कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, फिर कुछ कुछ आयन्स मिस होने पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना ही है। ठीक है, तो पहले से हाई होगा फिर कम हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्रिस्टल सस्टेन कर सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पहले ही बहुत कम हो, बिगिनिंग से ही कम है, फिर शॉर्टकी डिफेक्ट आने के बाद आयन्स मिस होंगे, आयन मिस होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर और नीचे गिरेगा, तो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए शॉर्टकी डिफेक्ट वहीं पे आता है जहां ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। जैसे कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, पर जिंक सल्फाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 इज अ लोअर नंबर। पहले से ही अगर लो है तो 4 के बाद तो ड्रॉप होके 3.2 3.3 पहुंच सकता है, तो वहां क्रिस्टल फिर सर्वाइव नहीं करता।
ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के टाइम पे ही शॉर्टकी डिफेक्ट आता है और साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब फ्रैंकल के अंदर आते हैं, उनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए और फ्रैंकल में साइज ऑफ कैटायन छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन। फ्रैंकल के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, तभी तो वो वॉइड में फिट होगा। ठीक है, तो किसका कैटायन छोटा है? याद रखिए, अल्कली मेटल का कैटायन छोटा है या डी ब्लॉक मेटल्स का? आंसर है डी ब्लॉक मेटल्स। कीप इन माइंड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रैंकल के लिए। डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि उनका साइज छोटा है। छोटा साइज होने से वो कैटायन वाइड में फिट हो सकता है। अल्कली मेटल सॉल्ट्स में कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं आता। अल्कली मेटल्स आर बिगेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अपने अपने पीरियड में अल्कली मेटल का सबसे बड़ा साइज है, कहने का मतलब थर्ड पीरियड में सोडियम सबसे बड़ा है, फिर मैग्नीशियम की तरफ जाओगे तो साइज कम होगा, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम सबसे बड़ा है। अल्कली मेटल सॉल्ट्स में शॉर्टकी डिफेक्ट आते हैं, ना कि फ्रैंकल। अल्कली मेटल कैटायन कैन नॉट adjust itself into the interstitial site. Alkali metal cation does not fit into the void. void को ही interstitial site कहते हैं। So फ्रैंकल डिफेक्ट ज्यादातर डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स में आता है और अल्कली मेटल्स में शॉर्ट की डिफेक्ट आता है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जितने भी हैं उतने ही क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन 37 पे। क्वेश्चन इज फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, आंसर है मिसिंग ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल। सॉरी, सी था ना ऑप्शन, ये बोथ तो बेटा सी में लिखा हुआ है ना कि बी में। ये देखो, बोथ मींस सी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? कैटायन भी मिस होगा और एनायन भी मिस होगा, तब जाके शॉर्ट की डिफेक्ट बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। इन ए सॉलिड लैटिस, cation has left a lattice point and is located at an interstitial position. cation अपनी जगह छोड़ चुका है और कहां चला गया? इंटरस्टिशियल पोजीशन में। तो लैटिस डिफेक्ट का नाम क्या होगा? ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट है, अभी अभी तो डिस्कस किया था हमने पूरा डिटेल। ये बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कैटायन अपनी स्पेस छोड़ के वॉइड के अंदर फिट हो जाता है और डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट्स में ये डिफेक्ट आता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कैटायंस आर स्मॉल इन साइज, देयरफॉर दे गेट एडजस्टेड इनटू द वॉइड्स। वॉइड के अंदर वो फिट हो जाता। सो सिंपल क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब वॉइड, ये भी मैं मेंशन कर रही हूं यहां, इंटरस्टिशियल वॉइड होता है, interstitial site. Let's come to the next question now, question number 39. ये क्वेश्चन भी डिफेक्ट्स के ऊपर है। देखो कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है डिफेक्ट्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.980। 0.980 ये आपको फॉर्मूला दिया है और मेटल जो है इट इज प्रेजेंट एज M+2 एंड M+3 इन इट्स ऑक्साइड। फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M+3 वुड बी। देखो आपके पास ये डिफेक्ट जो है ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है बेटा, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपने देखा कि ये रेशो 1:1 नहीं आ रही। हमारे क्वेश्चन में जो दिया है 0.98 और O दिया है, तो मतलब ऑक्सीजन 1 और मेटल 0.98। कहने का मतलब ये अगर 98 है मेटल तो ये 100 है। रेशो इज नॉट 1:1 या 1:2 नहीं है, होल नंबर में रेशो नहीं है। तो क्या निकालना है हमें? कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ मेटल एज M+3। M+3 की परसेंटेज निकालिए। तो आप क्या करोगे? लिसन वेरी केयरफुली। हमारे पास जो रिलेशन है वो 0.98 है मेटल का, तो लेट M+3 इज X।
m+3 और m+2 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दूसरे वाले को 0.98 माइनस एक्स ले लो। क्वेश्चन में दोबारा चेक कर लो, क्वेश्चन ने ये दिया था ना हमें m+2 और m+3, +2 + 3 दोनों दिए थे, तो हमने +2 वाले को लिया है 0.98 माइनस एक्स और एक को ले लिया है x। अब बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड्स, बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड्स आपके पास m 0.98 है, तो आप क्या करोगे, मेटल जो +3 है उसका हो गया 3x चार्ज, +2 वाली का हो गया 0.98 माइनस एक्स, ऑक्सीजन का चार्ज है -2 = 0। ये ठीक से लिखना आना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन ठीक से लिख ले तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने क्या क्या लिए वैल्यूज, ये चार्ज है m+3 का, ये चार्ज है m+2 का, ये चार्ज है बेटा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का -2 होता है। नेट चार्ज हमारे क्रिस्टल के ऊपर 0 है, हमने बैलेंस कर दिया है चार्ज को, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये सॉल्व करिए, 3x + 1.96 आएगा -2x -2 = 0। तो यहां से हम x कैलकुलेट कर लेंगे, x बनता है 0.04, मेटल +3 कितना आ गया 0.04, और आपको कैलकुलेट क्या करना था, फ्रैक्शन मतलब रेशो लेनी है, फ्रैक्शन ऑफ मेटल एज m+3। टोटल था 0.98, उसमें से मेटल +3 कितनी है 0.04, तो डिवाइड कर दो ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू थी 0.98 और डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 0.0408। अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शन परसेंटेज में है, परसेंटेज में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज ऑफ m+3 = 0.0408 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बनेगा बेटा 4.08%। ऑप्शंस देखते हैं, 4.08 मतलब डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। आपको मेटल 0.98 दिया था और क्रिस्टल का फॉर्मूला देखते ही ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये मेटल डेफिशिएंसी हो रही है। मेटल 98 है सिर्फ, जबकि ऑक्सीजन 100 है। ऑक्सीजन आपके क्रिस्टल का एनायन है, उसमें मेटल 98 कैसे एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि मेटल +2 भी है +3 भी है, चार्ज तो न्यूट्रल ही रहेगा। न्यूट्रल कैसे रह रहा है, ये देखो, ऐसा भी देखो, इसका पर्टिकुलर एग्जांपल होता है Fe 0.930, ये क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, इसमें Fe+2 भी है, इसमें Fe+3 भी है, दोनों हैं। तो क्या करेंगे हम, न्यूट्रलिटी देखने के लिए कैन आई से 3 फेरस आर इक्वल टू, दे आर इक्वलेंट टू 2 फेरिक। 3 फेरस क्यों लिए मैंने, क्योंकि चार्ज बन जाएगा 6 यूनिट, यहां पे चार्ज बन जाएगा फिर से 6 यूनिट, तो 3 फेरस को रिप्लेस करने के लिए 3 फेरिक नहीं 2 ही फेरिक चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन में कितने % पे न्यूट्रलिटी आएगी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि अगर 4.08% +3 है एंड रिमेनिंग इज +2, तब आपका क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, परसेंटेज कभी Fe का निकालने को बोलेंगे +2 का, कभी Fe+3 का। हमारे क्वेश्चन में m+2 m+3 दिया था। ऐसे कभी कभी निकल पे क्वेश्चन आए तो निकल में +2 एंड +4 होता है, तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन सीखने का मतलब है कि आपको ये चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए कि मेटल के अंदर +2 वाला चार्ज कितना है, +3 वाला कितना है और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, राइट। क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Schottky defect lowers the density, Frankel defect increases the dielectric constant। देखो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे ना डिफरेंस शॉर्टकी और फ्रैंकल के, तो शॉर्टकी डिफेक्ट से डेंसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि कुछ कैटायन और कुछ एनायन मिस हो जाते हैं। इवन कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा,
मिसिंग हो रही है। उसके बाद फ्रेंकल डिफेक्ट इंक्रीजेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों इंक्रीज करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये? क्योंकि बेटा कुछ आयन्स पास पास आ जाते हैं। पास क्यों आ गए? क्योंकि अपनी लैटिस पोजीशन तो छोड़ दी है कैटायन ने, वो वॉइड के अंदर आ गया, उससे फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। उसके बाद शॉर्ट की स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट मेक्स द क्रिस्टल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये भी ठीक है। जब जब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा तो होल्स क्रिएट होते हैं। होल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन करता है, बस फर्क ये होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होल से ऑपोजिट होता है। होल्स भी मूव करेंगे, एक जगह होल क्रिएट हुआ, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट कंडक्शन तो है ना, कंडक्शन इज ड्यू टू movement of ions, due to movement of electron, due to movement of holes. So all three of them are correct. सारे के सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग आर्सेनिक इनटू सिलिकॉन। अब आर्सेनिक मिक्स किया है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम के बनते हैं, आपको पहले भी बताया था। अब बेटा आर्सेनिक डाला है, तो जब तक ये नहीं पता आर्सेनिक पीरियोडिक टेबल में कहां को बिलोंग करता है, आर्सेनिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। सिलिकॉन तो था कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड देन टिन एंड लेड। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये बेटा ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 14 मतलब वैलेंस शेल विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 में कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपके क्वेश्चन में बिस्मथ, आपके क्वेश्चन में आर्सेनिक दिया है, बिस्मथ नहीं, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक इज गिवन, मतलब कि ग्रुप 15 का एलिमेंट से आपने डोपिंग किया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और 14 में 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का क्रिस्टल था तो सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल और 5 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक में प्रेजेंट हैं। जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में डोपिंग करते करते आर्सेनिक आ जाएगा तो ये सिचुएशन अराइज होगी, सब जगह 4 बॉन्ड बनेंगे, पर जहां पे आर्सेनिक आया वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी साथ में आएगा। सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड हैं, बट आर्सेनिक में 4 बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, ये मैंने सबके बॉन्ड बना दिए। आर्सेनिक तो 5 बॉन्ड बना सकता है, पर कहां से बनाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो तो 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा। ये सिचुएशन है। दिस इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड के बावजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो electrons are conducting in the crystal। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, होल से पी टाइप और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग करें तो कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 42। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन। पीजो इलेक्ट्रिक, अब बेटा क्रिस्टल्स में कुछ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, कुछ पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, उनके यूजेस हमें ठीक से पता होने चाहिए। रेडियो के अंदर क्या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज होता है, या टीवी में, या रिकॉर्ड प्लेयर्स में, या फ्रीजर में? आंसर है रिकॉर्ड प्लेयर्स। सॉरी, सी में लिखा है रिकॉर्ड प्लेयर्स, नॉट इन ए। ठीक है, रिकॉर्ड प्लेयर्स मतलब सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का यूज ठीक से देखो, इन सोनार डिटेक्टर। सोनार डिटेक्टर में, अल्ट्रासोनिक जनरेटर में, जनरेटर के अंदर और रिकॉर्ड प्लेयर्स के अंदर ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स यूज होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के यूजेस हैं ये। और जो पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उनके यूजेस भी इंपॉर्टेंट हैं।
बेटा pyroelectric crystals are used in alarms, फायर अलार्म्स होते हैं ना। देखो ये पता होना चाहिए, पायरो का मतलब है कि क्रिस्टल विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग। तो फायर अलार्म्स में, थर्मोस्टेट्स के अंदर ये पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमारे घर में जो लाइटर होता है, गैस लाइटर, उसके अंदर भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पता होना चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप प्रेशर लगाओगे, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाओगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ऐसे क्रिस्टल्स जो मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। आप जो लाइटर है, गैस लाइटर, उसके अंदर तो इमेजिन भी कर सकते हो, हम पीछे से प्रेशर लगाते हैं और आगे से स्पार्क आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। तो इनके प्रॉपर यूजेस पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिकॉर्ड प्लेयर्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, राइट। इवन एग्जांपल्स भी पूछते हैं कौन से क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक हैं, कौन से पायरो इलेक्ट्रिक हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इफ द alignment of magnetic movements in a substance is in a compensatory way so as to give zero net magnetic movement, net magnetic movement zero हो रही है, then the substance is said to be ferromagnetic or antiferromagnetic or ferrimagnetic और diamagnetic। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और टेबल में बेटा एग्जाम्पल दिए हैं। डेफिनेशन तो पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जाम्पल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, फिर मैंगनीज के सारे ऑक्साइड, याद रखो वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। फिर ऑक्साइड कोई भी आए, चाहे Fe2O3 मतलब Fe+3, FeO मतलब Fe+2। तो फेरस, फेरिक दोनों के ऑक्साइड, मैंगनीज के तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो सब एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर के हैं। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो एंट्रेंस में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको एग्जाम्पल पूछेंगे, डेफिनेशन कम पूछी जाती है, राइट। एंड फेरोमैग्नेटिक में एग्जाम्पल्स गिवन हैं। ये टेबल आपकी हेल्प के लिए है। NiO दोनों में है, फेरोमैग्नेटिक, NiO पैरामैग्नेटिक और एंटी फेरो दोनों में लिखा है, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अलाइनमेंट भी हो जाती है। तो मैं अभी आपको सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूंगी, बट मेरा स्ट्रेस इस पे है कि डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक को देखेंगे पहले। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये अलग अलग नेचर के सॉलिड्स हैं। हम सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां पे यूज आ रहा है उन सॉलिड्स का, किस सॉलिड को किस फील्ड में यूज करते हैं। जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में तो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स को यूज करके, परमानेंट मैग्नेट्स। और कुछ सॉलिड्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। अभी अभी आपने देखा कि अल्ट्रासोनिक रेडिएटर में, डिटेक्टर में, सोनार डिटेक्टर, इवन फायर अलार्म्स में कुछ कुछ क्रिस्टल्स यूज होते हैं, सब सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो हटा भी दो तो भी इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स होता है। ये इस तरीके से पॉइंट करते हैं। दीज आर दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट्स are in the same direction. All magnetic dipoles, they point in the same direction. They point in the same direction. अगर वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो उसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक, फर्स्ट डेफिनेशन। फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सॉलिड्स एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक का क्या मीनिंग है बेटा, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में और फिर कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों को मैंने इक्वल नंबर में ड्रॉ किया है। इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स
equal number of magnetic dipoles in opposite directions. अलग अलग डायरेक्शंस में मैग्नेटिक डायपोल्स इक्वल नंबर में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर था। क्वेश्चन था नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो कब होगी। इफ द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन ए कंपनसेटरी वे सो एज टू गिव जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। एंड डायामैग्नेटिक में और एक ऑप्शन सी भी था ना, फेरी मैग्नेटिक। पहले फेरी देखो फिर हम डाया देखेंगे। सी में लिखा था फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके अंदर एक डायरेक्शन में कुछ वेक्टर्स लगा दिए, कुछ मैग्नेटिक डायपोल्स, और फिर कुछ ऑपोजिट में। इस तरीके से मैंने सम अपवर्ड एंड सम डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिए, बट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट जीरो। कंप्लीट कैंसलेशन नहीं हुआ, इक्वल नंबर में नहीं है, अनइक्वल नंबर के अंदर डायपोल्स हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स। तो कंप्लीट कैंसलेशन नहीं आएगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी। ऐसे सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और आपकी डी ऑप्शन में लास्ट में दे रखा है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के अंदर तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बिगनिंग से ही जीरो होती है, ऐसे होता है वो डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मीन्स ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, all paired electrons, no net magnetic movement, no net magnetic movement। तो एंटी फेरो में भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, डायामैग्नेटिक में भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, बट एंटी फेरो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ डायपोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बाद में जाके ये कंप्लीट कैंसलेशन से जीरो होती है और डायमैग्नेटिक में बिगनिंग से ही जीरो होती है, राइट। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है बी ऑप्शन। 4 डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल्स थोड़ा थोड़ा लर्न करिए, एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कमिंग टू क्वेश्चन 44, रेजिस्टिविटी ऑफ विच मटीरियल इज जीरो एट 0 केल्विन। देखो, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर, दीज आर दी ऑप्शंस गिवन। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो बेटा रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। विद ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि अगर कूल कर दिया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। कूल करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना, कूलिंग से रेजिस्टेंस कम होगी। तो कूल करते करते अगर आप 0 केल्विन पे पहुंच जाइए, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन मतलब -273, ठीक है। कूल करते करते हम अगर -273 डिग्री पे चले जाएं फिर रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाती है। पहले ये याद रखो, जितना टेम्परेचर हाई होगा मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल अपनी अपनी लेटिस पॉइंट पे वाइब्रेट करेगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अगर हम कूल कर देते हैं तो वो उसकी वाइब्रेशंस रुक जाती हैं, मोशन सीज डाउन हो जाती है। कूल करते करते आप अगर 0 केल्विन पे आ जाओ तो रेजिस्टेंस भी कम होते होते जीरो ही हो जाती है। 0 केल्विन पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस में जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं हो तो उसमें तो कंडक्टेंस बहुत हाई हो जाएगी, तो उसको सुपर कंडक्टर का नाम दिया जाता है। सो रेजिस्टिविटी इज जीरो फॉर सुपर कंडक्टर्स, मतलब आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, ठीक है। सो साइंटिस्ट का नाम याद रखो, इट वॉज कैमरलिंग ओन्स। जिसने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर करी थी उसका नाम है कैमरलिंग ओन्स, ONEHS। कैमरलिंग ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर करी
और कुछ मरकरी के एलॉयज में, नायोबियम के एलॉयज में सुपर कंडक्टिविटी दिखती है। सुपर कंडक्टर्स का बहुत यूज होता है। सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं इन पावर ट्रांसमिशन। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, they are used in power transmission, they are used in navigation trains। navigation trains होती हैं ट्रेन्स विदाउट रेल, विदाउट रेलवे लाइन जो ट्रेन्स चलती हैं वहां पे भी सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर की इंपॉर्टेंस है लास्ट पार्ट में, कि ये अलग अलग तरह के जो सॉलिड, किसी को हम फेरोमैग्नेटिक कह रहे हैं, किसी को एंटी फेरो कह रहे हैं और किसी को सुपर कंडक्टर कह रहे हैं, उनके यूज कहाँ कहाँ पे आते हैं। मेन एक यूज तो याद हर किसी को होना चाहिए कि ये अलग टाइप ऑफ सॉलिड्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यूज होते हैं, पावर ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह तो सुपर कंडक्टर चाहिए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 45। What is the name of the phenomena wherein mechanical stress causes production of electricity? Mechanical stress से electricity produce होती है तो बेटा उसको piezoelectric effect कहते हैं, piezoelectric। So you are having pressure is applied or mechanical stress is applied। mechanical stress अगर हम किसी भी क्रिस्टल के ऊपर लगा दें, प्रेशर लगाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ क्रिस्टल विच विल बी I repeat my words, if on a crystal pressure is applied then electricity is produced। ऐसे क्रिस्टल को क्या बोला जाता है? piezoelectric crystal। It is called as piezoelectric crystal and electricity produced will be called as piezoelectricity। इसी तरह दूसरी बात क्या याद रखनी है, अगर हम क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं, हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, एक बारी प्रेशर लगाने पे, एक बारी हीट करने पे, तो सेकंड कैटेगरी का नाम है बेटा पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और इलेक्ट्रिसिटी विल बी कॉल्ड एज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, राइट। याद रखिए पायर मीन्स हीट, ग्रीक लैंग्वेज में पायर हीट होता है, वहां से याद हो जाएगा पायरो इलेक्ट्रिक मतलब हीट से आएगा। और पीजो इलेक्ट्रिक के लिए तो आपके माइंड में गैस लाइटर आना चाहिए, वहाँ इमेजिनेशन इजी है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को मैकेनिकल स्ट्रेस देते जाओ तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नाम है पीजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। सो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड्स और उनके यूजेस, उनकी डेफिनेशंस आपने देख ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेक्ट्स में हमने मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी देखा। एफ सेंटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नेक्स्ट वीडियो है ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे हम मेटल एक्सेस का क्वेश्चन, मेटल डेफिशिएंसी का क्वेश्चन फिर से करेंगे, एफ सेंटर का क्वेश्चन करेंगे, और जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन किया M+2 और M+3 की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, another question of the same type you will be getting in the next video, which is the video on the same chapter of solid state, but questions will be from NCERT exemplar, right? So that is all for the chapter. Before we meet in the next video, till then keep practicing and make sure you subscribe to this channel so that all the videos are available to you. And that is all. Thank you and bye bye.